we are going to discuss cheek carcinoma, CA of the cheek, and then its reconstruction. First of all, what are the layers of the cheek? So cheek contains of different layers. Like बाहर तो skin है, ठीक है, and then we have mucosa, submucosa, buccinator, parotid duct. These are the important layers of cheek. Like mucosa है, फिर submucosa है, buccinator है, parotid duct है, and every structure has got its own surgical importance and anatomical importance. So evaluation, first of all, like when the squamous cell carcinoma starts, there can be just color change. Like अगर ल्यूकोप्लेकिया है, एरिथ्रोप्लेकिया है, कोई और प्री-malignant disorder है, तो उसमें color change हो सकता है. The next thing is that you have to notice the character of the lesion. किस तरह का lesion है, because cheek के ऊपर endophytic ulcer भी हो सकता है, exophytic भी हो सकता है, ठीक है? Boundaries, borders, everything you have to examine. Then very important to note facial nerve paralysis, whether there is facial nerve paralysis or not, because that will tell you that that the parotid gland and the facial nerve, whether it is involved or not. So it's very important to see facial nerve involvement. Then mouth opening को भी आपने measure करना है, because what is the mouth opening? What does it tell you? If the mouth opening is limited, it will tell you that there is spread of the squamous cell carcinoma. So you have to note that as well. In duration, facial nerve examination, ductal examination, ठीक है? Duct, Stenson's duct, उसको भी आपने examine करना है. Then imaging में हमने क्या करना है? Imaging में we have to look for plain X-rays. And plain X-ray में इन्होंने ये कहा कि if you put the gauze between mucosa and alveolus, तो वो एक technique बताई है plain X-ray की. Then we have advanced X-rays. Advanced X-rays में CT and MRI. So this is about imaging. Now coming to surgical considerations. Surgical considerations, the total cheek is 3 centimeter in diameter. So मतलब अगर आप diameter of the cheek note करें तो वो 3 centimeter है. होता क्या है कि अक्सर जब when there is squamous cell carcinoma lesion, so the surgeons they are prone to compromise deep margin, because अक्सर thinking क्या होती है कि full thickness defect ना produce हो, ठीक है? So deep margin अक्सर आपका compromised हो जाता है. मतलब जब आप ऊपर से मतलब आप mucosa, submucosa है, buccinator है, skin है, ठीक है? So when the surgeon is doing clearance या surgery जब वो कर रहा होता है, तो उसका जो लीजन का जो डीपर मार्जिन होता है अक्सर उस पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. मतलब सर्जन कम रिसेक्शन करता है, ठीक है, टू अवॉइड डैमेज टू फेशियल नर्व एंड द नीड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फुल थिकनेस डिफेक्ट, ठीक है. सो मतलब जितना रिमूव करना चाहिए उतना रिमूव नहीं होता, उससे कम रिमूव होता है, ठीक है. एंड उसकी ऑब्वियसली उससे मसला होता है क्योंकि अगर आपकी डीप मार्जिन कॉम्प्रोमाइज होगा, इसका मतलब है आपने क्लियरेंस तो पूरी निकालनी है ना, बिकॉज हर पैथोलॉजी की जो ट्रीटमेंट होती है उसके 2 गोल्स होते हैं. The first one is eradication of pathology and the second one is its rehabilitation. So next thing is that the buccinator should be resected as deep margin for superficial lesions, because documented in 60% of stage 1 and 2 tumor. मतलब इन्होंने एक स्टडी की है जिसमें स्टेज 1 और 2 ट्यूमर्स को इन्होंने देखा है, T1 और T2 को, और उसमें उनको ये पता चला है कि इसमें 60% जो ट्यूमर्स होते हैं तो उनमें वैक्सीनेटर इन्वॉल्व होता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे सेड कि हमें वैक्सीनेटर को एज अ डीप मार्जिन रिसेक्ट करना चाहिए, ठीक है. इस तरह से अगर बकल पैड ऑफ फैट में स्प्रेड है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का, तो एक तो चांसेस ऑफ स्प्रेड बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज बकल पैड ऑफ फैट इज नॉट एन एनाटॉमिकल बैरियर, ठीक है. फैट है ना, तो फैट इज नॉट एन एनाटॉमिकल बैरियर फॉर द स्प्रेड ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो उसमें स्प्रेड बहुत ज्यादा होती है. एंड द सेकंड थिंग इज दैट योर अगर आप बकल पैड ऑफ फैट में adequacy of surgical margins is compromised, because you cannot take a frozen section. फैट को आप एज फ्रोजन सेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है. तो अगर आप फैट तक रहेंगे और फैट को नहीं निकालेंगे या तो उससे क्या मसला होता है कि आपके मार्जिन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, आप इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस नहीं कर सकते. इस तरह से पैरोटाइडेक्टमी टू प्रिजर्व फेशियल नर्व, एंड अगर बक्कल स्पेस में है तो बक्कल स्पेस में अगेन बक्कल स्पेस में देयर आर नो एनाटॉमिकल बैरियर्स, तो उसमें स्प्रेड बहुत ज्यादा होती है. सो इफ द बक्कल स्पेस इज इन्वॉल्व यू गो फॉर फुल थिकनेस रिसेक्शन. ये इसके कुछ जनरल इन्होंने रूल्स बताए हुए हैं, ठीक है. स्मैश लेयर.
स्मैश लेयर इज सुपरफिशियल मस्क्यूलो एपोन्यूरोटिक सिस्टम, ठीक है, एक फेशिया का एक सिस्टम है और ये पेरोटिड रीजन में काफी थिक होता है। पेरोटाइडेक्टमी जब हम कर रहे थे तो हमने वहां पे डिस्कस किया था। सो इट इज थिक इन पेरोटिड रीजन बट इट इज थिन इन चीक एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मार्जिन, ठीक है। पेरोटिड पे थिक है, चीक पे थिन है, तो इसलिए इसको भी हम एज अ मार्जिन यूज नहीं कर सकते। अगर ट्यूमर स्किन से क्लोज है और फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है, वी हैव टू गो फॉर अ फुल थिकनेस रिसेक्शन, मतलब स्किन के साथ हमने रिसेक्शन करनी है। नाउ कमिंग टू नेक, ठीक है। नेक का जो इशू है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक डिसेक्शन में डिस्कस करेंगे और उसमें वही है कि आपका ओकल्ट नोडल मेटास्टेसिस के चांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। 20% से जब ज्यादा होते हैं तो वी गो फॉर इलेक्टिव नेक डिसेक्शन। अगर एन पॉजिटिव नेक है तो फिर आपने करनी है नेक डिसेक्शन, ठीक है। इस तरह से T2 से T4 तक के जो लीजन्स हैं उनमें प्रोफाइलेक्टिक रिमूवल, मतलब आप प्रोफाइलेक्टिक नेक डिसेक्शन या फिर रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चीक सीए में T1 लीजन्स में नहीं और T2 से ऊपर जितने लीजन्स हैं तो उनमें नेक मैनेजमेंट जो है तो वो एडवोकेटेड है, ठीक है। फिर आती है बात रेडियोथेरेपी की। रेडियोथेरेपी में हमारे पास T1 T2, ठीक है, इसके लिए एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी है। T3 T4 के लिए क्या है, रिसेक्शन, नेक डायसेक्शन एंड पोस्ट ऑप रेडियोथेरेपी बिकॉज इट इज एन एडवांस डिजीज, ठीक है। तो उसमें आपने फिर एडजुवेंट जो रेडियोथेरेपी है वो भी आपने देनी है, ठीक है। एंड नॉन रिसेक्टेबल ट्यूमर्स के लिए वी कैन गो फॉर कीमो एंड वी कैन ऑल्सो गो फॉर पैलिएटिव रेडियोथेरेपी। सबको आवाज में इशू हो रहा है कि नहीं? इज एवरीवन फेसिंग द सेम इशू इन ऑडियो? ओके, लेट मी रिपीट अगेन। नेक मैनेजमेंट की मैं आपको ये बात बता रही थी कि चीक में T1 लीजन्स में तो नहीं, लेकिन T2 T3 T4 लीजन, मतलब T1 से जो ऊपर की लीजन्स है, T1 से जो ऊपर की लीजन्स है तो उनमें हमने नेक डायसेक्शन, इलेक्टिव नेक डायसेक्शन करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये मैं आपको बता रही थी नेक डायसेक्शन में। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में फिर जब नेक डायसेक्शन करेंगे वहां पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। रेडियोथेरेपी की हमने बात की, T1 T2 लीजन्स में EBRT भी है और ब्रैकीथेरेपी दोनों दे सकते हैं। T3 T4 लीजन्स में आपने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का जो लीजन है उसको भी रिसेक्ट करना है, नेक डायसेक्शन भी करनी है और पोस्ट ऑप रेडियोथेरेपी भी देनी है, ठीक है। और जो नॉन रिसेक्टेबल ट्यूमर्स है तो उनमें कीमो एंड पैलिएटिव रेडियोथेरेपी इज वन ऑप्शन। सो दिस इज अबाउट द सर्जिकल कंसिडरेशंस ऑफ cheek carcinoma. Now we have to start with reconstruction, ठीक है। So reconstruction में like I said आपके reconstruction के हमेशा goals होते हैं, ठीक है, और goals को हमेशा divide किया करें aesthetic goals में और functional goals में। अब जो aesthetic goals हैं तो वो static भी हैं और dynamic भी हैं, मतलब cheek का CA है, ठीक है, और एक आप just imagine करें कि इसमें आपके static goals भी हैं, मतलब statically face की appearance and everything depends on cheek, ठीक है, aesthetically। और dynamic का मतलब है कि smile में, ठीक है, ड्यूरिंग फंक्शन भी आपका जो होता है तो वो एक एस्थेटिक अपीयरेंस अफेक्ट होती है। सो एस्थेटिक में दोनों स्टैटिक और डायनामिक गोल्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। फंक्शनल गोल्स क्या क्या है आपके? माउथ ओपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो प्रॉपर हो, ठीक है। इसके अलावा ड्रूलिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो आपका चीक है तो वो लिप कॉम्पिटेंस में भी हेल्प, लिप कॉम्पिटेंस मतलब फ्लूइड्स को और लिक्विड्स को होल्ड करने में भी हेल्प करता है, सो ड्रूलिंग नहीं होनी चाहिए। then another goal, functional goal is facial nerve, ठीक है, और sensations. So these are actually your functional goals. इसके अलावा चीक के अंदर माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, तो माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स की वजह से लुब्रिकेटेड रहता है चीक, ठीक है। तो वो लुब्रिकेशन जब फूड का बोलस इनसाइड द ओरल कैविटी होता है तो उसकी लुब्रिकेशन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल गोल है हमारा, ठीक है। The buccal mucosa lines the oral cavity from the upper to lower gingivo-buccal sulcus and from commissures to the retromolar trigone, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है ये? अपर टू लोअर जिंजाइवो-बकल सर्कस और कमिशोर से लेके रेट्रोमोलर ट्राइगोन तक। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, और वो ये है कि अक्सर जो बकल म्यूकोजा का कैंसर होता है पर्टिकुलरली हमारे एरिया में और इंडिया में, ठीक है, इसको जिंजाइवो बकल कॉम्प्लेक्स सीए भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ये अक्सर चीक के साथ जो जिंजिवो बकल सर्कस होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, या जिंजिवो बकल सर्कस के साथ चीक भी इन्वॉल्व होता है। वेरी कॉमन, हम केपी में तो बहुत कॉमनली इसको देखते हैं। माय डिसर्टेशन वाज ऑन द सेम टॉपिक बिकॉज यहाँ पे स्नफ डिपिंग इज द मेन कॉज ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड स्नफ जो पेशेंट रखता है तो वो सल्कस में रखता है, ठीक है। तो सल्कस के साथ एल्वियोलस भी इन्वॉल्व होता है और एल्वियोलस, सल्कस एंड चीक तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है।
अब role of the buccal mucosa, like I already told you, it's in the oral preparatory phase wherein the bolus is prepared while chewing. Minor salivary glands keep the mucosa moist. The mucosa is also distensible to allow for mouth opening. Parotid duct opens into the mucosa, and the layers, like I already mentioned, mucosa, buccinator, overlying dermis and skin. ठीक है? So this is about the mucosa. डिफेक्ट क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ डिफेक्ट्स है, ठीक है, लेकिन ये मुझे एक किताब से मिला है तो इसको देख लें. टाइप 1 डिफेक्ट में लेस देन 2 सेंटीमीटर डिफेक्ट है. टाइप 2 डिफेक्ट्स में मोर देन 2 सेंटीमीटर है. टाइप 3 इज अ फुल थिकनेस डिफेक्ट, ठीक है, मतलब टाइप 3 डिफेक्ट्स इन्वॉल्व बोथ द म्यूकोजा एंड द स्किन ऑफ द चीक. म्यूकोजा स्किन दोनों इसमें इन्वॉल्व है. टाइप 4 डिफेक्ट्स में कमिश्योर भी साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है, विद ईदर द म्यूकोजल और कंबाइंड डिफेक्ट. टाइप 5 डिफेक्ट्स आर दोज व्हिच इन्वॉल्व द मैंडिबल एंड मैक्सिला, जो बोन को इन्वॉल्व कर रहे हैं. टाइप 6 डिफेक्ट्स इंफ्राटेम्पोरल फॉसा तक गया हुआ है. एंड टाइप 7 डिफेक्ट्स में चीक के साथ लिप भी इन्वॉल्व है, ठीक है. सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन. हमेशा आपकी जो रिकंस्ट्रक्शन होती है इट शुड बी डिफेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है. सो टाइप 1 less than 2 centimeter, type 2 more than 2 centimeter, type 3 full thickness defect, type 4 plus commissure, type 5 with bone, type 6 infratemporal fossa, type 7 with lip. So this is the classification of cheek defects. So small और जो superficial defects हैं, ठीक है, I don't know the name of this classification, Tariq, but this is a book that I've recently started reading, and उसमें मुझे ये क्लासिफिकेशन काफी अच्छी लगी थी. इट्स एन इंडियन बुक, और यूजुअली जो जिंजिवो बक्कल सीए है तो ये आपको हमेशा इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिकल्स और जर्नल्स में बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज दिस इज प्रिडोमिनेटली रिलेटेड टू अस, ठीक है. बाकी जो आपकी जो टंग का सीए हो गया या जो ओरोफेरिंग्स का सीए है, ठीक है, तो वो चूंकि वेस्ट में कॉमन है तो उसमें उनकी ज्यादा स्टडीज हैं, बट हमारी जो ज्यादा स्टडीज हुई है वो जिंजिवो बक्कल सीए पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, ठीक है. सो आई हैव टेकन दिस फ्रॉम एन इंडियन बुक. आई विल शेयर द नेम ऑफ द बुक विद यू. अब डिफेक्ट स्पेसिफिक अगर आप जाएं तो उसमें स्मॉल एंड सुपरफिशियल जो डिफेक्ट्स है उनमें आप प्राइमरी क्लोजर कर सकते हैं, ठीक है. अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर है यू कैन टेक अ रैंडम लोकल म्यूकोजल फ्लैप, ठीक है. स्किन ग्राफ्ट इज वन ऑप्शन, बट स्किन ग्राफ्ट में एक मसला है. स्किन ग्राफ्ट एक तो बात ये होती है कि स्किन ग्राफ्ट में श्रिंकेज होती है, फाइब्रोसिस होती है, ठीक है. ये हर जगह पे अगर आप स्किन ग्राफ्ट लगाएंगे तो ये उसका डिसएडवांटेज है. सो देयर इज लॉस ऑफ सेंसेशन और साथ में हेयर ग्रोथ, बिकॉज स्किन है, ठीक है, तो इनवर्ट चीक में हेयर ग्रोथ होगी, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, एंड विद रेडिएशंस फाइब्रोसिस ऑफ द स्किन फ्लैप होगी, ठीक है. You can also take a pedicle mucocutaneous flap as well, ठीक है, a pedicle mucocutaneous flap. अगर पूरा जो बकल म्यूकोजा है वो नहीं है, ठीक है, तो then because I told you that the buccal mucosa also contain minor salivary gland, we need sensate sensations भी चाहिए और lubrication भी चाहिए, ठीक है. lubricating grafts उसमें हमें चाहिए, या फिर हम free flaps ले सकते हैं. So small superficial and entire buccal mucosa. Pedicle flaps is another option and they are readily available, they are aesthetically pleasing, but obviously because आपके pedicle flaps का मतलब ये होता है ना कि आप for example cheek में defect है, करीब तरीन pedicle flap कौन सा आप ले सकते हैं. करीब तरीन flap आप सोचेंगे ना, तो आप temporalis से एक flap ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो pedicled है. pedicled का मतलब है कि उसके साथ पूरा जो मतलब मसल आपने flap आप separate नहीं कर रहे, ठीक है, आप उसकी पेडिकल या उसकी टेल के साथ उसको लगा रहे हैं, रोटेट करके लगा रहे हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली उसमें मसला क्या होता है कि ये रेडीली तो अवेलेबल होते हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग भी होते हैं, लेकिन इनका एक लिमिटेड एरिया तक आ सकते हैं ना. टेम्पोरालिस को आप कितना खींच सकते हैं, ठीक है. सो द थिंग इज कि ये लार्जर डिफेक्ट्स के लिए इतनी यूजफुल नहीं है. सेकेंड थिंग इज कि मेटास्टेसिस अगर हो जाती है तो पेडिकल फ्लैप्स के साथ क्या मसला होता है मेटास्टेसिस में, एनीवन? अगर मेटास्टेसिस हो जाए तो व्हाट प्रॉब्लम, अगर एक पेडिकल फ्लैप है या एक बल्कि फ्लैप है उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैम वो तो तब होता है जब मार्जिन्स पॉजिटिव हो तो रिकरेंस के चांसेस हो सकते हैं. नहीं, इसमें मसला ये होता है कि आपके जब मेटास्टेसिस होते हैं, ठीक है, पेडिकल फ्लैप्स की वजह से आप उस जगह को मॉनिटर नहीं कर सकते. देखिए एक आपने रिसेक्शन की है ना, ठीक है, मार्जिन्स भी आपके नेगेटिव हैं, ठीक है, रिसेक्शन की है, मार्जिन्स भी नेगेटिव है. अब एक बल्कि फ्लैप आपने डाल दी है चीक में, ठीक है, तो उसको आप जब मॉनिटर करेंगे तो क्लिनिकली
उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती क्लिनिकली, आपको रिकरेंस का पता नहीं चलता। पेशेंट में रिकरेंस हुई होगी और वो मसल फ्लैप के नीचे छुपी हुई होगी, ठीक है। सो द रिकरेंस इज ऑफन हिडन एंड you cannot find out about recurrence, ठीक है। this is the biggest disadvantage of a large flap or a pedicle flap, ठीक है, कि आपको रिकरेंस को आप मॉनिटर नहीं कर सकते, आपको रिकरेंस का पता नहीं चलता, ठीक है। देन वी हैव रेडियोथेरेपी। अगर हो तो पेडिकल फ्लैप्स में वही वाली बात है, श्रिंकेज और ये चीजें होती हैं, ठीक है। इस तरह से प्रीवियस सर्जरी अगर एरिया में हुई हो, जैसे आप टेम्पोरालिस ले रहे हैं लेकिन वहां पे कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है, तो वहां पे भी आप फिर फ्लैप नहीं ले सकते। एंड वेस्कुलर एनाटमी इज सेगमेंटल एंड अनरिलायबल, जैसे अभी किसी ने बोला कि पुअर ब्लड सप्लाई, ठीक है। सो पेडिकल फ्लैप्स की ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं। वन ऑप्शन इज प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा मसल है, ठीक है, और आपको पता है कि नेक में है, ठीक है। सो 5 by 7 सेंटीमीटर तक का डिफेक्ट आप इसके साथ कवर कर सकते हैं। इट हैज गॉट अ वाइड आर्क ऑफ रोटेशन। इसका मेन जो फायदा है वो ये है कि ये थिन फ्लैप है, मतलब एक थिन और प्लायबल सा फ्लैप है, ठीक है। एंड इट इज वेरी इजी टू यूज, ठीक है। थिन प्लायबल है तो चीक में आपके लिए अच्छा है, क्योंकि चीक इज ऑल्सो प्लायबल ना, इतना कोई थिक फ्लैप तो हमें चीक के लिए नहीं चाहिए। इजी टू यूज है, ठीक है, हेयरलेस है एंड देयर आर मिनिमल एस्थेटिक इम्पैक्ट्स, मतलब आपके डोनर साइड पे एस्थेटिक इम्पैक्ट्स इतने नहीं होते। बट द प्रॉब्लम इज दैट द डोमिनेंट वेसल इज नॉट विजुअलाइज्ड। किंकिंग इसमें हो सकती है, क्योंकि आप प्लेटिज्मा नेक से लेके चीक में ले जा रहे हैं ना, तो उसमें किंकिंग हो सकती है, मतलब ट्विस्टिंग हो सकती है, ठीक है। इट इज एलिवेटेड प्रायर टू रिसेक्शन टू अवॉइड इंजरी टू द फेशियल नर्व, ठीक है। अब जब आप रिसेक्शन करते हैं तो अक्सर हम फेशियल नर्व को लाइगेट कर देते हैं। तो अगर आपने फेशियल नर्व को लाइगेट कर दिया है, अगर आपने फेशियल नर्व को लाइगेट कर दिया है, उससे क्या मसला होता है कि आपका फ्लैप की वाइबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। वाइबिलिटी ऑफ फ्लैप कैन बी डिक्रीज्ड। एंड दूसरी बात है आपकी साइज इन एडिक्वेसी, ठीक है। मतलब आपको देखना भी है कि इसका साइज एडिक्वेट है कि नहीं। वी कैन नॉट यूज इट इन रेडियोथेरेपी पेशेंट्स, ठीक है। रेडियोथेरेपी के पेशेंट्स में हम यूज नहीं कर सकते। एक और बात है कि अगर नेक डाइसेक्शन, मतलब आपने नेक डाइसेक्शन के साथ आप प्लेटिज्मा को भी उठा सकते हैं, लेकिन द मेन थिंग इज कि आपका जो फेशियल नर्व है उसकी लाइगेशन या उसकी इंजरी नहीं होनी चाहिए। अक्सर जब हम नेक डाइसेक्शन करते हैं तो हम फेशियल नर्व को लाइगेट करते हैं, ठीक है। सो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इसको रिसेक्शन से भी पहले उठाएंगे ताकि फेशियल आर्टरी आपकी प्रिजर्व रहे, ठीक है। सो सुपीरियरली बेस्ड प्लेटिज्मा इज बेस्ड ऑन मेंटल एंड फेशियल, बट इट हैज गॉट अ पुअर वीनस ड्रेनेज, मतलब इसकी आर्टीरियल सप्लाई इज वेरी गुड, द वीनस ड्रेनेज इज पुअर। जी मैम, पिछले वाली जो बात थी ना, ये प्लीज रिपीट कर दें कि फेशियल मतलब नर्व को हम लाइगेट कर देते हैं, आर्टरी आर्टरी नर्व देखिए, को। अच्छा अच्छा। एक मिनट। प्लेटिज्मा इज बेस्ड ऑन फेशियल आर्टरी ना, प्लेटिज्मा की ब्लड सप्लाई फेशियल आर्टरी से आ रही है। अगर आपकी फेशियल आर्टरी इंजर हो गई है सर्जिकल प्रोसीजर में, ठीक है, या आपने खुद उसको लाइगेट किया है, ड्यूरिंग नेक डाइसेक्शन हम लाइगेशन करते हैं ना फेशियल आर्टरी की, उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी प्लेटिज्मा की ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी, ठीक है। सो ये मैं बात कर रही थी, सुपीरियरली बेस्ड इज मेंटल एंड फेशियल, बट इट हैज गॉट अ पुअर वीनस ड्रेनेज। और एक इसमें पोस्टीरियरली बेस्ड फ्लैप है जिसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी है, वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन के साथ है, लेकिन आर्टीरियल सप्लाई उसकी पुअर है। मतलब सुपीरियरली बेस्ड की आर्टीरियल सप्लाई अच्छी है, पोस्टीरियरली बेस्ड की वीनस ड्रेनेज अच्छी है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली लाइक आई टोल्ड यू, नेक डाइसेक्शन के साथ हम इसको लेते हैं। And incision usually McPhee incision, we give McPhee incision, and I'll tell you about the landmarks and everything inshallah जब हम neck dissection करेंगे, ठीक है। Superior and inferior limbs of the skin flaps in deep subcutaneous tissue, ठीक है। Let's just see the picture. देखिए ये आपने incision दिया है, ठीक है। This is not McPhee, actually आपका वो Apron incision है। ये प्लेटिज्मा यहाँ से आप इसको बेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। और ये देखिए, ये इतना फ्लैप आपने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये स्किन पैडल है आपका, ठीक है, इसको आपने लिया, आपने इसको चीक के अंदर लगाया, एंड दिस इज द पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट। सो वेरी इजी कि अगर आप इसको नेक डाइसेक्शन के साथ ही उठा लें, इट्स वेरी सिंपल टू डू, क्योंकि आपका नेक के एरिया में ही आ रहा है, ठीक है। सो एक्सेस आसान हो जाती है। एंड एडवांटेज इसका क्या है, बिकॉज इट्स अ थिन प्लाइबल फ्लैप, तो आप नेक डाइसेक्शन के साथ इसको ले सकते हैं। सो दैट्स वाई आप इजीली इसको लगा सकते हैं चीक में, ठीक है। लेकिन आर्क ऑफ रोटेशन का आपने ख्याल रखना है, किंकिंग का आपने ख्याल रखना है। द नेक्स्ट फ्लैप दैट वी हैव इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड फ्लैप, ठीक है।
स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड भी हम ले सकते हैं. द स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड कैन बी मायोक्यूटेनियस. इट्स अ वेरी वर्सेटाइल फ्लैप. ठीक है, आप इसको मसल और स्किन ले सकते हैं, मायोक्यूटेनियस ले सकते हैं, या आप मायोपेरियोस्टियल ले सकते हैं. नीचे क्लेविकल भी पड़ा हुआ है ना, तो मसल और पेरियोस्टियम ले सकते हैं. यहाँ पे इसको मसल और बोन ले सकते हैं, मायोऑशियस ले सकते हैं. ठीक है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है तो वो 3 लेवल्स पे डिवाइडेड होती है. अपर पार्ट में इट इज सप्लाइड बाय द ऑक्सीपिटल आर्टरी, मिडल पार्ट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड द लोअर पार्ट इज सप्लाइड बाय द थायरोसर्वाइकल ट्रंक. ठीक है, तो 3 मुख्तलिफ आर्टरीज के साथ इसकी सप्लाई है. लाइक दिस इज योर स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल. ठीक है, अगर इसका जो अपर पार्ट आप देखें तो इट इज सप्लाइड बाय द ऑक्सीपिटल आर्टरी. इसी तरह से जो मिडिल पार्ट है तो वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, और जो लोअर पार्ट है तो वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक उसको सप्लाई करता है. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू नेक डाइसेक्शन, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर कि आप कौन सी टाइप की नेक डाइसेक्शन कर रहे हैं. प्रॉक्सिमिटी टू द डिफेक्ट साइट, ease of harvest and lack of requirement of another incision are the biggest advantages. आप खुद सोचिए, करीब है ना, तो आपके कोई दूसरी इंसिजन की जरूरत नहीं है, इजीली ले सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी है. ठीक है, गुड थिकनेस, टिश्यू कवरेज ऑफ द एक्वायर्ड डिफेक्ट, skin, muscle, bone, periosteum transfer is possible, but the disadvantage is partial skin necrosis इसके साथ होती है, and possible breach in oncologic principles because इसकी proximity है. देखिए, स्टेनोक्लाइडोमास्टॉइड के साथ आपकी इंटरनल जुगुलर वेन होती है. ठीक है ना, और जुगुलर वेन के पास क्या चीज है, जुगुलर लिम्फ नोड्स हैं. ठीक है, जुगुलर लिम्फ नोड्स हैं उसके साथ. सो मसला क्या होता है आपका कि और ब्रीच इन ऑन्कोलॉजिक प्रिंसिपल मतलब ये है कि आपका स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड को हम रिमूव भी करते हैं ना बाज नेक डाइसेक्शंस में. ठीक है, इसके साथ इतनी क्लोजली लिम्फ नोड्स सारे पड़े हुए हैं और वो लिम्फ नोड्स हो सकते हैं इन्वॉल्व हो, तो सीडिंग और इन चीजों का चांस होता है. ठीक है, और पार्शियल स्किन नेक्रोसिस इज पॉसिबल. दिस इज द स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड एंड इट्स ब्लड सप्लाई. ठीक है, ये देखिए, अपर पार्ट में ऑक्सीपिटल आर्टरी है, मिडिल पार्ट में सुपीरियर थायराइड आर्टरी है एंड लोअर पार्ट में थायरोसर्वाइकल ट्रंक है. Yes, Dr. Nahmeed has a good point. Also, it can also cause exposure of the carotid. ठीक है, now coming to free flaps. ठीक है, अब फ्री फ्लैप्स आपका ये है कि लाइक आई टोल्ड यू कि अगर आप पूरे का पूरा म्यूकोजा जब हटाते हैं तो उसके इसमें सेंसेशंस और ल्यूब्रिकेशन दोनों लॉस्ट हो जाती हैं. ठीक है, तो उस ल्यूब्रिकेशन को रेप्लेनिश करने के लिए हम म्यूकोजल फ्लैप्स हमें चाहिए ना. जैसे हम बात कर रहे थे कि हम लिप के वर्मिलियन को रेप्लेनिश करने के लिए हम म्यूकोजल फ्लैप लेते हैं, तो अब यहाँ पे आपने चीक का म्यूकोजा गया है. ठीक है, लाइक आई सेड, बिगेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन इज दैट यू ऑलवेज रिप्लेस लाइक विद लाइक. मसल लॉस हुआ है तो मसल से रिप्लेस करें. अब यहाँ पे म्यूकोजा लॉस हुआ है. ठीक है, इसमें म्यूकोजल फ्लैप्स दे प्रिवेंट जीरोस्टोमिया इन रेडियोथेरेपी. आपको पता है रेडिएशन थेरेपी के बाद वैसे भी बहुत ज्यादा जीरोस्टोमिया होता है, और अगर चीक डिफेक्ट में बहुत ज्यादा ड्राइनेस क्रिएट होती है. सो इसके लिए हम ट्रांसवर्स कोलन ले सकते हैं, बिकॉज ट्रांसवर्स कोलन में ल्यूब्रिकेशन है, म्यूकस ग्लैंड्स है वहां पे. ठीक है, सो ट्रांसवर्स कोलन हैज गॉट एन एडिक्वेट पेडिकल, ड्यूरेबल प्लायबल टिश्यू and it secretes mucin. That is the biggest advantage जो कि हमें चाहिए. ठीक है, यहाँ पे mucin producing cells होते हैं. इसके अलावा we can also take, so transverse colon is a very useful flap. Beside that, the next option that we have is jejunum से या omentum से ले सकते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है कि फोल्डिंग, बहुत ज्यादा फोल्डिंग चाहिए होती है. ठीक है, दूसरी बात है कि म्यूसिन बहुत ज्यादा होता है, तो अब इतना ज्यादा भी तो हमें नहीं चाहिए ना सलाइवा. Another thing is कि इसमें पेरिस्टोलिसिस होती है. ठीक है, बिकॉज आपको पता है ना यहाँ पे वो माइंटेरिक प्लेक्सिस और सारी चीजें हैं, तो वो पेरिस्टोलिसिस तो एक नॉर्मल फिनोमिना है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वही पेरिस्टोलिसिस फिर चीक की एरिया में होगी. ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू रिडंडेंट पॉकेट्स, छोटे छोटे पॉकेट्स उसमें बन सकते हैं. ठीक है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रिडंडेंट टिश्यू ओवर देयर. सो बट दिस इज वन ऑप्शन. अगर म्यूकोजा लॉस्ट हुआ है तो लुब्रिकेशन के लिए वी कैन टेक ट्रांसवर्स कोलन, जेजिनल एंड ओमेंटल. एक बात मैं यहाँ पे ये आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास पेपर में तो ठीक है ना, पेपर में तो आपके ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन के अपने मार्क्स होते हैं. जब आप वाइवा के लिए जाते हैं तो वाइवा के लिए काइंडली अपने आप को बहुत बहुत
ऐसी चीजें बोला करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, ठीक है। लाइक अब म्यूकोजल फ्लैप में जो ट्रांसवर्स कोलन जेजुनोमेंटल तो बहुत ज्यादा मतलब रेयरली कहीं पे होता होगा, ठीक है। सो द थिंग इज दैट यू ऑलवेज हैव टू से जो आप जस्टिफाई कर सकें, ठीक है। हमेशा सिंपलेस्ट ऑप्शन पे जाया करें जो आसान तरीन हो, ठीक है, कि उसमें थोड़ा बहुत होगा लेकिन आपकी जिसमें आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पे डेफिनेटली आपने इतने और टीम्स को भी इन्वॉल्व करना है, सो ऑलवेज बी वेरी प्रैक्टिकल ड्यूरिंग वाइवा, ठीक है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट पेपर, तो पेपर में आप ये सारे ऑप्शंस लिख सकते हैं। Then we have buccal pad of fat. Buccal pad of fat can be taken pedicled or it can be taken as a free graft. दोनों हो सकते हैं, ठीक है। Pedicled भी हो सकता है और free भी हो सकता है। So basically कहाँ होता है ये? It is present within the masticator space के अंदर होता है ये, ठीक है। It's a cyst sarcosis and the total space in which it is present is 9.6 ml, ठीक है। Dr. Tariq, you're asking that if we can take tongue flap in the mucosa, cheek mucosa में, cheek mucosa usually defect काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा defect tongue के साथ cover नहीं होता, ठीक है। तो वो एक issue होता है। दूसरी बात ये कि हमें basically mucosa में sensation वो lubrication चाहिए, ठीक है। वो lubrication के purpose के लिए हम ये चीजें ले रहे हैं। So 9.6 ml is the total volume of the buccal pad of fat. इतना ज़्यादा volume है इसका, 9.6 ml. Buccal and the deep temporal branches of the maxillary, branches of the facial and the transverse facial. तीन तरह की arteries हैं, तीन arteries इसमें involved हैं, ठीक है। Maxillary artery, facial artery, transverse facial artery, जो कि buccal pad of fat को supply कर रही है, ठीक है। Maxillary की buccal और deep temporal branches, branches of the facial and the transverse facial arteries, ये हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट रिपीट इट। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो है वॉइस ब्रेक हो रही है। We are talking about buccal pad of fat. Buccal pad of fat is a very useful option in cases of cheek reconstruction के लिए भी it's a very useful option, ठीक है। It can be taken pedicled or it can be taken as a free graft. Location is within the masticatory space, ठीक है। It's a cyst sarcosis of fat, ठीक है। 9.6 ml is the total is the total volume of it, ठीक है। अच्छा, इसकी जो सप्लाई है तो इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा मतलब काफी डाइवर्स सप्लाई इसकी, ठीक है। इसको तीन ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, तीन आर्टरीज सप्लाई करती हैं, ठीक है। इसमें एक आपकी आती है मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, फेशियल आर्टरी, और उसके बाद आपकी आती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ठीक है। अच्छा, लोकेशन मैक्सिलरी वेस्टिब्यूल सेकंड मोलर के पास, वहां पे बेसिकली इसकी लोकेशन होती है। सो it is carefully mobilized by blunt dissection. It is delivered into the defect passively once adequate mobility is obtained. So you have to mobilize it. इसको निकालना पड़ता है, ठीक है, because ये ऊपर जाके मतलब ऊपर टेम्पोरल एरिया तक गया होता है ना। आप में से जिन लोगों ने कोई सर्जरी असिस्ट की हो या की हो खुद the buccal pad of fat, ठीक है। So it is carefully mobilized by blunt dissection. The operator should not pull on the flap, rather the operator should bluntly dissect, allowing the flap to extrude. मतलब ये खुद ही बाहर आता है, आपने इसको blunt dissection करनी है, इसको आपने खींचना नहीं है because ये टूट जाता है, ठीक है। फैट है ना, इसकी कोई इतनी इंटेग्रिटी तो नहीं है, it's not like a muscle. जब आप इसको पुल करते हैं तो ये it breaks down, ठीक है। So therefore you have to let it come down, ठीक है। The fat pad is typically encased within a thin facial envelope which aids in this dissection. The fat is sutured into position with absorbable sutures. The fat pad is allowed to heal by secondary intention. इसको हम cover नहीं करते, ये secondary intention के साथ heal हो जाता है, और उसके बाद इसकी mucosalization हो जाती है. It mucosolizes within weeks. So that's why I'm telling you, अगर आप पेपर में तो ठीक है, आप सारे options लिखें, अगर आप वाइवा में buccal pad of fat बोलें तो इट्स एन ऑप्शन जो प्रैक्टिकली यूज होता है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। पुल नहीं करना अपने फ्लैप के ऊपर, लेट इट पैसिवली कम डाउन विद द हेल्प ऑफ ब्लड डाइसेक्शन एंड देन सूचर इट विद एब्जॉर्बेबल सूचर, और विद इन वीक्स इसकी म्यूकोजलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। Maxilla, cheeks, palate, orbit, retromolar fossa defect, closure of large oroventral fistulas. It can reach interiorly up to the commissure, ठीक है। The buccal pad of fat can also be used in conjunction with free bone grafting.
It can also be used to provide increased soft tissue bulk over reconstruction bars. A defect of 4 centimeter can usually be covered adequately with the buccal pad of fat flap. ठीक है, मतलब आप ये कर सकते हैं कि अगर ऑलरेडी रिकंस्ट्रक्शन हुई हो और आपको उसके ऊपर अब सॉफ्ट टिश्यू कवरेज चाहिए, तो आप उसको कवर कर सकते हैं विद बकल पैड ऑफ फैट. ठीक है, एंड 4 सेंटीमीटर तक के डिफेक्ट इसके साथ इजीली कवर हो जाते हैं. डोनर साइड कॉम्प्लिकेशंस आर रेयर, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम भी नहीं होती इसमें. Slight edema for the first few weeks. Occasionally, the flap is hypertrophic, interfering with the occlusion and requires trimming. Partial necrosis also result from inappropriate tension on the flap if it is transferred to greater distance. ठीक है, बाकी कोई खास इसकी मतलब ऐसे कोई खास कॉम्प्लिकेशंस इसकी नहीं है. ठीक है, स्लाइट एडिमा शुरू में हो सकता है और बिकॉज अगर ये ऑक्लूजन वगैरह के साथ इंटरफियर करे तो आप इसको ट्रिम कर सकते हैं. और इसके अलावा पार्शियल नेक्रोसिस अगर इसमें इनअप्रोप्रिएट टेंशन हो फ्लैप में. ठीक है, आप बहुत दूर तक लेके गए हैं ना, तो उस केस में इसमें पार्शियली ये नेक्रोज्ड हो सकता है. Another option that we have, we were talking actually क्योंकि मैं साथ साथ फ्लैप्स इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि साथ साथ ये जो आपकी एक साथ अगर हम फिर करेंगे फिर इट विल बी टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर यू और फिर आप उसको रिटेन नहीं कर सकते. सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्मॉल डिफेक्ट्स. इसको आप मतलब आप इसको अच्छा स्मॉल डिफेक्ट्स चीक में आप प्राइमरीली भी क्लोज कर सकते हैं. ठीक है, प्राइमरी क्लोजर भी आप कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी इंटेंशन इतना हम फेवर नहीं करते चीक रीजन में. डज एनीवन नो व्हाई? हम सेकेंडरी हीलिंग के लिए क्यों नहीं छोड़ते चीक डिफेक्ट्स को? मैम क्योंकि फिर टिश्यू फाइब्रोसिस और लिमिटेड माउथ ओपनिंग हो जाएगी अगर हमने सेकेंडरी इंटेंशन के लिए छोड़ा. हाँ, आपने सेकेंडरी इंटेंशन के लिए इसलिए नहीं छोड़ा बिकॉज इट लीड्स टू लिमिटेड माउथ ओपनिंग. इसके अलावा बात ये है कि सो व्हाट आर द ऑप्शंस. तो हम ऑप्शंस पढ़ रहे थे, हमने प्लैटिस्मा का ऑप्शन पढ़ा, then we studied about sternocleidomastoid. ठीक है, then we have also studied about mucosal flaps, free flaps. ठीक है, for mucosal जो आपकी lubrication है उसके लिए buccal pad of fat है एक ऑप्शन. ठीक है, and tissue engineering is another option. मतलब आप टिश्यू इंजीनियरिंग के साथ तो खैर आजकल लोग पूरे मैंडिबल बना रहे हैं, तो ये है कि टिश्यू इंजीनियरिंग आप किसी भी रिकंस्ट्रक्शन जब आपका सवाल आए उसमें आप टिश्यू इंजीनियरिंग भी डाल सकते हैं. ठीक है, ये देखिए ये आपका बक्कल पैड ऑफ फैट है. किसी ने पूछा था सिस सार्कोसिस का. सिस सार्कोसिस बेसिकली फैट जो होता है वो मसल्स के साथ फैट होता है ना, तो बेसिकली सिस सार्कोसिस का जो मकसद होता है, उसका जो पर्पस होता है वो स्मूथ फंक्शन ऑफ द मसल्स होता है. ठीक है, जैसे आप देखें ना टेम्पोरालिस मसल के साथ एक कुशनिंग इफेक्ट दे रहा है ना, सो दिस इज द लोकेशन. ये यहाँ तक तो इसकी रिमूवल रिट्रीवल आसान होती है. ये से ऊपर जो पार्ट है ना इसको आपने बिल्कुल पुल नहीं करना. ठीक है, नहीं तो ये यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा. सो देखिए काफी बड़ा वॉल्यूम है इसका. नाउ टॉकिंग अबाउट फुल थिकनेस डिफेक्ट. ठीक है, जो फुल थिकनेस डिफेक्ट होते हैं. एक्सक्यूज मैम. जी जी मैम जो बकल पैड फैट आपने बताया वो इप्सिलैटरल साइड से लेंगे या दूसरी साइड से लेंगे उसको डिफेक्ट को कवर करने के लिए, चीक का जो डिफेक्ट है? इप्सिलेटरल साइड से. ठीक है, अच्छा. कॉन्ट्रोलैटरल आप लेंगे तो दांतों के दरमियान नहीं आएगा, ऑक्लूजन में आएगा ना, ठीक है, थैंक और यू. इतनी दूर तो आ भी नहीं सकता. सो नाउ कमिंग टू फुल थिकनेस डिफेक्ट्स. फुल थिकनेस डिफेक्ट्स में क्या है कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइप ऑफ डिफेक्ट. कंपोजिट डिफेक्ट है. ठीक है, स्किन भी अब साथ में है ना. सो पेडिकल भी ले सकते हैं हम लोग और हम फ्री फ्लैप्स भी ले सकते हैं. पेडिकल फ्लैप्स में केयरफुल पेशेंट सिलेक्शन इज नीडेड. पार्शियल फ्लैप नेक्रोसिस जो हम पहले बात कर चुके हैं, सेकेंडरी डिफॉर्मिटी हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल प्रोसीजर्स टू डीबल्क. मतलब अगर बहुत बड़ा मसल आपने लिया, जैसे प्लेटिस्मा तो एक थिन और फ्लाइबल फ्लैप है ना, लेकिन आपने पेक्टोरियलिस मेजर लेट सपोज लिया, पेक मेजर काफी बल्की फ्लैप है, तो अगर वो बहुत ज्यादा बल्की होगा तो आपको उसको बाद में फिर प्रोसीजर्स के साथ डीबल्क भी करना पड़ेगा. ठीक है, and there is increased time of reconstruction as well. ठीक है, so you have to just view pros और cons को आपने देखना है. Now let's see full thickness defects में one option is temporalis muscle. अब पीछे आप लोग कर रहे थे वो partial thickness थे. ठीक है, ये भी full thickness defects है. temporalis की लोकेशन ये कहाँ से अराइज होता है? lateral skull at temporal lines. ठीक है, and it is attached at coronoid. ये तो पता है ना आपको, coronoid process के साथ attached है. टेम्पोरालिस को हम कहते हैं कि इट्स अ बाइपिन्नेट मसल. बाइपिन्नेट मसल, बाइपिन्नेट मसल का मतलब ये है कि इसके दो पार्ट्स हैं. एक फैन शेप मसल है ये. ठीक है, और ये इसके दो पार्ट्स हैं, तो आप इसको सेजिटली मतलब आप इसको बीच में कट कर सकते हैं. बीच में कट करने से मेरा मतलब है कि देखिए ये एक मीडियल और लैटरल में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है,
टेम्पोरालिस मसल है, फैन शेप मसल है, इट्स अ बाइपिन्नेट मसल, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड अटैचिंग एट द कोरोनॉइड प्रोसेस। तो अगर आप इसको सैजिटली डिवाइड कर देते हैं तो एक आपका मीडियल पार्ट रह जाता है और एक आपका लैटरल पार्ट रह जाता है, ठीक है, और ब्लड सप्लाई इसकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। लिमिटेड डिफॉर्मिटी, सम मसल कैन बी लेफ्ट अटैच्ड टू स्कल, बहुत इसकी डोनर साइड डिफॉर्मिटी बहुत कम है, ठीक है, supplied by the anteroposterior deep temporal artery, which is a branch of internal maxillary artery, and middle temporal artery, which is a branch of superficial temporal artery. मतलब external carotid से भी supply है इसकी और maxillary artery से भी है. So anteroposterior deep temporal and middle temporal artery. देखिए ये deep temporal arteries हैं, ठीक है, which are branches of maxillary artery. और external carotid artery देती है superficial temporal artery. So superficial temporal artery and anteroposterior deep temporal arteries. But the anteroposterior deep temporal arteries are branches of maxillary artery. Superficial temporal artery is a branch of external carotid. अगर आप पेपर में ये भी लिखते हैं कि external carotid artery and maxillary artery, that is fine. लेकिन वाइवा में कभी कभार जब आपका कोई केस होता है और उसमें रिकंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें अगर आप ऑप्शन टेम्पोरालिस का बोलते हैं तो दे कैन आस्क यू अबाउट द ब्लड सप्लाई एज वेल, ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें से जो कौन सी ब्रांच डीप टेम्पोरल की है और कौन सी ब्रांच मैक्सिलरी की है, एंड व्हिच वन इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. So we will take a hemicoronal incision with or without anterior and posterior releases